But I've been actually काफी देर से looking forward to talk to you. And as far as I know, you wear a lot of hats. So you're an activist, which I know. Yes. And I know about Lal Band as well. But you're also a teacher, political science teacher at LUMS. And you're also, I think, the general secretary at the Mazdoor Kisan Party. Yes. Is there anything else you do? That's a lot. That's quite a bit, isn't it? That's quite a bit. That's quite No, I guess quite overwhelming actually because LUMS mein, I'm a full-time teacher, not part-time there, full-time. full time. And to do the other two things in addition to that, it can be a lot of work. Yeah. And I kind of also saw that you were in LSC for some time as well. You taught there too. I taught there. That's where your journey started. That's right. And you don't mention it. I see. LSC बेचारों बना कोई नहीं. I loved my time at LSE. Yeah, I taught there for 3 years. I used to teach economics at LSE and Got also it. at LACAS at the same time. ठीक है. तो और 3 साल मैंने पढ़ाया. It's one of the best times I've had. The students were fantastic, really responsive. Yeah. And उनके साथ फुटबॉल भी मैं खेलता था. उनके साथ थिएटर भी हम करते थे, म्यूजिक भी करते थे, प्लेस भी करते थे. एक हमने ब्रिगेड बनाई थी called the Literacy Brigade. Okay. Then we would go into neighborhoods and clean neighborhoods and do all sorts of teach people and do all sorts of very interesting things like that. There's 120 students in that. Everybody would make teams of 5, 6, 8, and then they would go to the neighborhoods and do community service there. It's fantastic. And people, all the students did it very enthusiastic. Okay. But so I was so you went to LSE and this is 98. 98 to 2001 I taught at Lahore School of Economics. Okay, and this is when you come back from US? Yeah. Tell me a little about your history because I'm very... So I studied at HSM. Okay. Schooling at HSM. You're an AC boy. Yeah. I don't know, we didn't call it that back then. Okay, thank God. So, uske baad I went to the US to do my bachelor's in economics and political science, double major at Grinnell College. 4 साल वो हो गए. फिर मैं वापस आ गया. Then I started teaching at LSE and LACAS. I used to teach economics back then. So A-level economics and also college economics. And then 3 साल मैंने economics पढ़ाई. फिर I went to do my master's. I went to Sussex. Actually, I went to do my master's in economics, but then I had enough with economics. So मैंने change कर लिया to international relations. So IR में master's किया. फिर वापस आ गया. Then I went to LUMS. Started teaching at LUMS. And then I taught for 4 years at LUMS, and then I took money from LUMS and HEC, and then I went for my PhD, and that was at SOAS. So I did my master's at Sussex, UK, and then my PhD at SOAS. SOAS is a big Pakistani community. SOAS? Yeah. Not really. It's a very small school, but London में है. तो लंदन में तो बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है. Yeah. Is it that we have मगर पाकिस्तानी जाते हैं SOAS. काफी जाते हैं. और लॉ स्कूल में बहुत जाते हैं because it has an excellent law program. Okay. And also because if somebody wants to do, अगर जिस I looked at the class structure of Pakistan. तो अगर आपने कोई इस तरह का करना है, PhD or masters, तो Sussex is, SOAS is the best choice for that because उनका focus ही सारा इस चीज पे है. Muslim world पे, Middle East पे, Asia पे, China पे, etc. Class structure पे was your thesis? That was my PhD. Your PhD. And then फिर उसमें book भी छपी. Oxford University published it in 2012. We even got an award, etc. After Hamid Khan Award it got in 2012. Very cool. But what was, so a PhD में एक hypothesis भी होता है ना जो prove करना होता है end में. So what was that? What was your hypothesis question? Basically मैंने Asiatic mode of production के point of view को support किया था, which is the point of view that India, Middle East, China वगैरह के अंदर Ottoman Empire, etc. यहाँ पे जो mode of production था या economic system था, it was totally different from European feudalism. That's the main idea. तो इस point of view को मैंने support किया. फिर मैंने ये देखा कि किस तरह से उसकी transition हुई into capitalism, जिसमें मैंने कहा कि it was a colonial transition, which within the literature, it again distinguishes that transition from the European transitions. ठीक है. और फिर फाइनली जाके मैंने जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्लास स्ट्रक्चर है उसकी एक स्टैटिस्टिकल स्टडी की कि बेसिकली
किस हद तक कैपिटलिज्म डेवलप हो चुका है, क्या फ्यूडलिज्म अभी तक है पाकिस्तान में, नहीं है, किस हद तक है, रूरल एरियाज में क्या रिलेशंस हैं, बेजमीन किसान कितने हैं, लैंडलेस पेजेंट्स कितने हैं, अर्बन एरियाज के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर में लोग क्या कर रहे हैं, बिग इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो किस किस्म की इकोनॉमी है पाकिस्तान की, इस पूरे क्वेश्चन को देखा। ठीक है। हाँ। एंड क्या है पाकिस्तान का? और आई वुड से दैट वाज आई एम गेसिंग 98 एंड नाउ इट्स 2 decades Well, after no, I have think things even नहीं, changed? पीएचडी तो मेरा 2012 में खत्म हुआ था। Okay. हाँ, क्वाइट रिसेंट, आई मीन रिलेटिवली 12 साल हो गए, Yeah, मगर yeah, but still. हाँ 90s में तो नहीं था। ठीक तो है। सो एनीवे पाकिस्तान के अंदर सिलसिला यही है कि अगरचे ऑफ कोर्स एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म दोनों मिक्स्ड हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चर के अंदर, मगर उसमें कैपिटलिज्म डोमिनेट करता है। मगर जिस किस्म का कैपिटलिज्म डोमिनेट करता है वो जिस दिलचस्प सवाल है, बिकॉज इट्स नॉट रियली लार्ज स्केल कैपिटलिज्म, Okay. इट्स नॉट रियली बिग इंडस्ट्री एक्सेट्रा, वो बहुत कम है। डोमिनेट वही करती है, मगर जो न्यूमेरिकली डोमिनेट करता है ना मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन, स्मॉल कमोडिटी प्रोडक्शन, पर्सनल कमोडिटी प्रोडक्शन ओवरवेलमिंगली डोमिनेट करता है, यानी लाहौर की गर्मी। But you were तो saying, yeah, why हाँ, did we stop it? उसमें ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। फ्लॉ Okay. ये था कि वो सारी जो दौलत थी ना वो चंद खानदानों के अंदर और चंद एरियाज के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गई। ठीक है। जिस तरह महबूबुल हक साहब ने भी बताया, लेट 1960s में उन्होंने रिपोर्ट की कि जी इंश्योरेंस भी सारी 80% इंश्योरेंस भी 22 खानदानों के पास है, कैपिटल भी उन्हीं के पास है, यू नो फाइनेंस भी उन्हीं के If पास somebody है। calls. तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान रिवोल्ट में चला गया, वेस्ट पाकिस्तान के सूबे रिवोल्ट में चले गए, क्योंकि सारी कि वो तो हम दौलत सब कुछ पंजाब को दे रहे थे, लेकिन पंजाब में भी चंद खानदानों चंद खानदानों चंद को। खान Okay. पंजाब में भी था, मगर एक्चुअली कराची लेट बहुत था। जो अच्छा। हाँ हाँ तो ये हम आदम पंजाब जी क्यों और सुनते रहते हैं बार बार कि यार पंजाब पे सब कुछ चला पंजाब जाए? की डेवलपमेंट एक्चुअली पंजाब की इंडस्ट्रियल क्लास, चिन्योटी क्लास है, वो तो डेवलप हुई 80s में। उससे पहले जो ज्यादातर कैपिटल था वो कराची में था। अभी भी पुरानी सारी बिजनेस फैमिलीज, आदम जी और कावस जी, और खैर उनका तो बिजनेस खत्म हो गया, वो सारा कराची बेस्ड था। Okay. पंजाब में सीएम लतीफ साहब हुआ करते थे, और फिर बाद में जाके ये इत्तफाक ग्रुप 80s में ये बढ़ा है ना, लेट 70s और 80s में जब जिया आया है, तो फिर पंजाब की तरफ शिफ्ट हुआ है कैपिटल, Okay. और काफी हद तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह भी। तो जो ओरिजिनल पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल एलीट थी ना वो कराची बेस्ड, Okay. पोर्ट बेस्ड थी, एंड सो वो पोर्ट सिटी थी, बड़ा शहर था, इंडस्ट्रियल शहर था वगैरह। सही है। एनीवे फिर ये चिन्योटी टेक्सटाइल सारा सिलसिला बना, और क्योंकि वो टेक्सटाइल रॉ में नहीं अब बिक रहा था, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हुई ना, अब वो कपड़ा बनना शुरू हुआ, फिर कपड़े के बाद वो उसके कपड़े बनने शुरू हुए, उसकी एक्सपोर्ट्स 80s के अंदर शुरू हुई, तो फिर जाके यहाँ पे जो बेल्ट है, शेखुपुरा वगैरह, सियालकोट, ये वो, ये थोड़ी इंडस्ट्रीज बेल्ट ये है, फिर फुटबॉल भी ये बनते हाँ हैं ये सारा कुछ। एग्जैक्टली और ये भी जो थी ना ये बड़ी लो टेक थी पहले। फैसलाबाद था, फैसलाबाद एक एक्सेप्शन था। ओके। तो ये तो बड़ी लो टेक है ना, ये जो सर्जिकल गुड्स हैं और हाँ जो हाँ 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 फुटबॉल बनाने वाला, अक्सर ये तो हाथ से बने होते थे। Yeah. सो दिस वेरी लो टेक इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री कहना भी जो है ना एक किस्म गलत का है। मजाक ही है। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से इंडस्ट्री है, दुनिया के स्टैंडर्ड से वो इसको ए, इंडस्ट्री नहीं मानते, हम्म। उसको हैंड इंडस्ट्री या सेमी व्हाटएवर हैंड इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट टाइप मानते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं एक्चुअली इसको। तो इंडस्ट्री तो होती है बड़े पैमाने पे, जो जो लूम्स वगैरह बड़ी लगी होती हैं, सो ऑन, तो वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, एक्चुअली वो बहुत कम है। तो ये है बस एंड श्योर सो 80s के अंदर आपका ये सारा शिफ्ट आया, मतलब शिफ्ट है। ये आपको लगा है गलत हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, बट वाज दैट रियली द एम? डिड द गवर्नमेंट रियली केयर अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? नो 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 राइट, नो सो नो द एम मस्ट हैव बीन देखिए, डिफरेंट। भुट्टो की गवर्नमेंट ने कोशिश की कुछ हद तक कि इस मॉडल को चेंज किया जाए, अय्यूब के मॉडल को चेंज किया जाए। सो ही नेशनलाइज्ड 256 ऑफ द बिग But इंडस्ट्रियलिस्ट। wasn't that there was a massive backlash to that? No, बैकलैश तो इंडस्ट्रियलिस्ट से था, पब्लिक से तो नहीं था, पब्लिक तो बड़ी खुश थी। खुश थी। हाँ, पब्लिक Okay. तो कहती थी कि इन्होंने सब कुछ तो लूट मार के ये खा गए हैं। ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रीज बनी थी सारी स्टेट के हेल्प से। हेल्प से, एग्जैक्टली। Okay. तो पब्लिक तो कहती थी इनको नेशनलाइज करें, पब्लिक तो बहुत खुश थी इस बात से कि ये बड़े बड़े But उससे I'm सरमायादार। guessing कोई investor confidence तो कम हुआ होगा। हाँ,
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, तो इन्वेस्टर्स तो बड़े अपसेट थे। मिसाल तौर पे कावज़जी साहब ने तो सारी जिंदगी फिर भुट्टो के खिलाफ आर्टिकल लिखे, क्योंकि उनकी जो शिपिंग थी वो भुट्टो ने नेशनलाइज कर दी। सीएम लतीफ साहब जिनकी पटियाला इंजीनियरिंग वर्क्स थी, जो कि फिर बाद में पीको बनी, वो उनकी एक ही इंडस्ट्री थी, वो भी बड़े खिलाफ थे भुट्टो के ऑब्वियसली। तो बड़े सैकड़ों के की कई चीजें जो है आधे एसेट्स उनके नेशनलाइज हो गए। अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि बहरहाल जो वो 22 खानदान थे वो तो बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स भी किए। अब वो लैंड रिफॉर्म्स को बहुत बड़े तो नहीं हुए, मगर उसका थ्रेट तो था फ्यूडल क्लास के हवाले से, तो वो भी नहीं खुश थे शुरू में, सिवाय सिंध के लैंडलॉर्ड्स बाद में फिर आ गए, क्योंकि उनका एक और एंगल भी था उसमें कि भाई ये सिंधी है और सो ऑन। तो दुनिया में कई मुल्कों के अंदर लैंड फॉर्म्स हो चुके हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किक स्टार्ट करने के लिए। लैंड रिफॉर्म जो है ना, उसमें ये होता है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं इनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, अब पता नहीं है कि नहीं, मगर अब अभी भी है, मगर बहरहाल उस जमाने में तो बहुत ही बड़े पैमाने पे था कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी जहाँ काश्तकारी भी नहीं हो रही होती थी। They were just part of the estate of the feudal lord, right? Okay. And so they were not productively being used. और दूसरा ये कि फ्यूडल लॉर्ड के पास इतना वास्ट स्टेट होता था कि वो उस पर मशीनरी नहीं लाता था, वो अपने मज़ारों से ट्रेडिशनल तरीके से काम करवाता था। सही है। दुनिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ उस वक्त अयूब खान ने भी लैंड रिफॉर्म किया। अयूब खान को लेफ्टिस्ट तो नहीं था, उसने भी लैंड रिफॉर्म किया, वो कॉम्पनसेटेड था। तो ये लैंड रिफॉर्म के पीछे जो थॉट प्रोसेस था 50, 60, 70s तक, वो यही था कि नंबर एक, जो अनप्रोडक्टिव लैंड है उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। ठीक है, अब फ्यूडल लॉर्ड्स के पास बहुत सारी जमीन है जी, ये मेरी जमीन शिकार की जमीन है, ये जमीन मेरी ऐसी फिरने की जमीन है, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि फ्यूडल लॉर्ड जो है ना, वो अपने सिचुएशन, वो एक बिजनेसमैन नहीं था और अभी भी नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल मजारत के जरिए काम करता था। अब गवर्नमेंट्स ये चाहती थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, नई सीड्स इंट्रोड्यूस हो, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ट्यूबवेल्स वगैरह, मैकेनाइजेशन हो एग्रीकल्चर। सो दे फेल्ट कि जो रिच पेजेंट फार्मर है ना, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि वो कैपिटलिस्ट फार्मर है, तो वो जो है ये चीजें करेगा। तो इसलिए ये फालतू जमीनें जो हैं जो फ्यूडल लॉर्ड ने हमें रखी हुई है, ये इनको दी जाए, ये ज्यादा तेजी से इस पे काम करें। तो ये बहुत सारे लोगों ने किया। अब इंडिया के अंदर इतना ह्यूज लैंड रिफॉर्म्स हुए, राइट के लोगों ने भी किया, लेफ्ट के लोगों ने भी किया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ी सॉलिड इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन भी थी। अब तो फिर फ्यूडल लॉर्ड्स भी उन्होंने बड़ा इसका शोर मचाया, साड़ी जमीना छीन लिया। अच्छा, फिर भुट्टो ने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह किए, बट बेसिकली कम्युनिस्ट नहीं था वो। ठीक है, इस बात को भी क्लियर होने की जरूरत है। But we were talking about, I want to get into that. It was very, you were telling me कि हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हुए, हाँ, वो फिर चले क्यों नहीं? वो चले इसलिए नहीं कि अगर आप कू हो गया ना, फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कू हो गया। 77 के अंदर जिया केम टू पावर, और पब्लिक तो बहरहाल भुट्टो के साथ थी। आप जो मर्जी कहते भी मगर फैक्ट ऑफ द केस है, मेजॉरिटी तो भुट्टो के साथ थी, और गरीब पब्लिक खास तौर पे। तो फिर जिया ने जो इस्लामाइजेशन की ना, इस्लाम को इस्तेमाल किया इस मकसद के लिए कि जो पाकिस्तान का तबकाती निज़ाम है ना, क्लास स्ट्रक्चर है, जो इलीट को धचका पड़ा था ना 68 के बाद, 67, 68, 72, 73 तक पाकिस्तान के अंदर जो मजदूर तबका था ना, मिहनत कश लोग थे, वो यूनियंस पे यूनियंस बनाई जा रहे थे और बड़े एक्टिव थे और पुश बैक कर रहे थे कि गरीबों को कुछ मिलना चाहिए। तो 77 के अंदर फिर जब आर्मी आ गई ना, तो आर्मी ने फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक फोर्सेस थे ना, उनको अपने साथ जोड़ के इसको पुश बैक किया। गरीबों की जो ये अपसर्ज थी ना, इसको पुश बैक किया, इस्लाम को यूज करते, इस्लाम को, इनकी हंगर उन्होंने इस तरह मिटाई। हंगर क्या मिटाई, बस उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये तो सब इस्लाम के खिलाफ है, ये कुफर है। तो इस तरह जब उसको कुफर डिक्लेयर किया, तो वो एक आइडियोलॉजिकल उसको पुश बैक किया। फिर अगर कोई नहीं मानता तो फौज खड़ी थी, वो कोड़े मार देती थी, जेल में डाल देती थी। बड़ा ब्रूटल मार्शल लॉ था जिया का। मेरा 11 साल इस तरह फिर वो मार्शल लॉ चला। मेरा इसमें एक सवाल है, सो अबाउट द इस्लामाइजेशन, सो ये भी जो भुट्टो की, लेकिन कहते हैं द लास्ट पीरियड ऑफ भुट्टो, भुट्टो आल्सो मेड सम कॉम्प्रोमाइजेस विद मुल्लास, मैनी, एंड दैट काइंड ऑफ आल्सो लेड, लास्ट पीरियड नहीं, इनफैक्ट कई कॉम्प्रोमाइजेस उसने
रिलीजियस राइट के साथ भी किए, फौज के साथ भी Because किए। भुट्टो was, I remember जो भुट्टो की आइकॉनिक वो है कि यार मैं शराब पीता हूँ, मैं लोगों का खून नहीं पीता। हाँ, दलेर आदमी था। बट But that changes at some देखो point. ना, ये एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें जो है ना इतनी रेलेवेंट ही नहीं है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वो जो रेलेवेंट चीज, मेरा मकसद कहने का ये है कि कोई इंडिविजुअल करता है नहीं करता, हमने देखना, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को और किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसकी पॉलिसी क्या है विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस इन सोसाइटी, तबकात के एतबार से उसकी पॉलिसी क्या है। अब भुट्टो की पॉलिसी ये तो नहीं थी कि मैंने मजदूरों को मालिक बना देना है, जो कि कम्युनिस्टों का नुक्ता नजर है। मगर उसकी पॉलिसी ये जरूर थी कि जो अयूब का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना, जो कि प्योरली इलीट कैपिटलिस्ट लेड डेवलपमेंट था, स्टेट कैपिटलिस्ट लेड डेवलपमेंट थी, उसको मैंने कुछ ट्रांजिशन करना है कि जो गरीब है उसकी भी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो, मिडिल क्लास की सिचुएशन बेहतर हो, और इलीट थोड़ी सी जो है ना उसको थोड़ा सा दबाया जाए। आप कह सकते हैं कि भुट्टो इन हिज ओन माइंड, एंड ही सेज दिस मेनी टाइम्स, थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ सोशल डेमोक्रेट, यानी कि स्कैंडिनेवियन टाइप में को सिस्टम लाऊंगा, थोड़ा सा एलीट्स को पीछे करूंगा, पब्लिक को ऊपर लेके आऊंगा। मुझे क्या सारे पॉलिटिशियन लाके ही कहते हैं स्कैंडिनेवियन वाली वो चीज। तो कहते हैं, मगर उनकी सिर्फ हवाई फायर होता है। सो मगर एलीट जो थी ना पाकिस्तान की, वो इसके खिलाफ थी। They didn't want their privileges इस तरह से destroyed by भुट्टो। तो उन्होंने फिर एक पूरा कैंपेन किया, जो पहले पीएनए की शक्ल में आया, फिर उसके बाद जिया अमरीत की शक्ल में आया, कि ये भुट्टो इज्म खत्म हो जाए, इसमें से डंग निकल जाए। वो बाय द लेट 1980s वो डंग निकाल दिया। डंग निकलने से मेरा मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी पे रोटी कपड़ा मकान करती थी, फिर भी कहती थी, बट एक्चुअली उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी थी। 70s में जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी के इलीट को हम थोड़ा सा डैमेज करेंगे ताकि गरीब थोड़ा ऊपर आए। 90s में जब पीपल्स पार्टी फिर इक्तदार में आई, लेट 80s में, तो वो खत्म हो गया था। उन्होंने उस वक्त तक सोवियत यूनियन भी टूट गया था, सोशलिज्म की वेव को बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ था। तो 90s के अंदर ऑलरेडी पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि भाई अब हम वो नहीं करेंगे जो 70s में हमने किया था, यानी कि लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, लैटरल एंट्री स्कीम एक भुट्टो ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो जिसमें अफसरशाही को चेंज करने के लिए, वो नहीं हम करेंगे, वगैरह वगैरह, इलीट को डैमेज नहीं करेंगे। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि पाकिस्तान की इलीट के साथ हमारा एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो जाए और हम बड़े छोटे छोटे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। बट ऑफ कोर्स इलीट डिडंट वांट दैट, सो दे वर वेरी मच इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ एट दैट टाइम, एंड जो कि उस वक्त प्रोजिया फोर्सेस थे, आईजेआई, वो तो उसके हक में थे, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, और वो बेनजीर के बड़े खिलाफ थे कि कोई पता नहीं किसी वक्त पीपल्स पार्टी कल्टी खा के जो है ना वही करना शुरू कर दे जो उन्होंने 70s में किया। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो बड़ा डैमेज होगा। देखो, लिबरलिज्म वगैरह और इन चीजों से ना एलीट को नहीं कोई फर्क पड़ता। अब कोई शराब पीता है नहीं पीता, इससे क्या फर्क पड़ता है एलीट के जिसको कहना चाहिए वेल्थ को। तो असल गेम तो सारी वेल्थ की है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स नॉट द इशू। वो इशू उभारा इसलिए जाता है क्योंकि असल इशू जो था वो ये था कि इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है ना वो नहीं आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान। इसके लिए, इस मकसद के लिए इस्लाम को ना यूज किया भुट्टो ने भी और आईजीआई। अच्छा, फिर मगर सिचुएशन ये बनी आगे चलते हुए कि वो 90s में इसीलिए बार बार हुकूमतें गिरती थी, आती थी जाती थी, मगर इसमें जो प्लेयर्स थे ना उसमें फौज भी थी एक तरफ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी। और अब हुआ ये, जिस तरह के आगे जाके हमें पता चलता है कि फौज और मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने शुरू हो गए। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तरह से लेट 90s में जाके रिट्रीट कर गई थी, खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। आपको भी याद होगा कि एक पॉइंट था क्योंकि नेशनल असेंबली में 14 सीटें शायद बच गई थी। आई मीन जीरो पे पहुंच गई थी पीपल्स पार्टी, जिस एक जमाने में सारी पार्टियां पाकिस्तान की मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती थी और हार जाती थी। एक पार्टी सबको डिफीट कर जाती थी। अब पीपल्स पार्टी की 16 या 14 या इस तरह कुछ सीटें बच गई नेशनल असेंबली में। इमेजिन दैट, खत्म हो गई। तो अब जब पीपल्स पार्टी का वो थ्रेट खत्म हो गया, वो डंग खत्म हो गया कि ये गरीबों, ये इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो डर खत्म हो गया, तो दूसरी कॉन्ट्रडिक्शंस इमर्ज कर गई। वो कॉन्ट्रडिक्शंस यही थी कि जो कैपिटल 80s में डेवलप हुआ, नवाज शरीफ, और पंजाबी कैपिटल डेवलप हुआ 80s के अंदर, जो नवाज शरीफ की क़यादत में स्टेट ने अगेन डेवलप किया, उसका स्टेट से तजाद हो गया। और उसमें जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन थी वो ये थी कि
जो ये पंजाब का नया कैपिटल डेवलप हुआ था, वो ये चाहते थे कि इंडिया से दोस्ती करें, इंडिया से दोस्ती करें और तिजारत करें, और फौज कतई तौर पे ये नहीं चाहती थी। तो कारगिल हुआ, पहले लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कारगिल हुआ, कारगिल के बाद कू हो गया, और फौज ने फिर उसको रोक दिया, कहा कि हाँ हम कर सकते हैं उनसे बातचीत, मगर हम ये प्रोसेस को महदूद रखेंगे, इंडिया के साथ पीस प्रोसेस को अपने तक महदूद रखेंगे। इसी तो उन्होंने उसको रखा। हाँ, तो ये मुशर्रफ के पीरियड हो गया, उसी से आईपीपी भी तबाह हुआ, क्योंकि आईपीपी का ओरिजिनल पूरा प्रोजेक्ट ये था कि यहाँ पे पावर प्लांट लगेंगे और इंडिया को हम पावर बेचेंगे। तो इंडिया के साथ तो दोस्ती खत्म हो गई, तो पावर क्या बेचनी थी, तो वो सारा प्रोजेक्ट भी उसी वजह से ठप हो गया, सर्कुलर डेट शुरू हो गई। खैर एनीवे, और भी बड़े नुकसान आए थे, मगर ये तो ये फिर चलता रहा सिलसिला 8 साल, मुशर्रफ का पूरा पीरियड। फिर ये वापस आए पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, बेनजीर का बड़ा कमबैक हुआ एक तरह से, जब वो वापस आई एग्जाइल के बाद, एकदम से पीपल्स पार्टी उभरती हुई नजर आई, तो बैतुल्ला महसूद ने जाके उसको मार दिया, बेनजीर को, ठीक है ना, कत्ल कर दिया कि भाई ये तो अमेरिका की एजेंट है। अगेन उसका एंगल यही था कंजर्वेटिव फोर्सेस का कि ये कोई लिबरल सेक्युलर किस्म की चीज ले आएगी, इनको तो नहीं हमने आने देना, मार दो उसको, मार दिया। तो खैर थोड़ी देर हुकूमत चलती रही, टॉटर करती रही, जैसे कह सकते हैं आप, पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेशन अच्छी की, और नून ने फैसला किया कि हम अब डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे जिस तरह हमने 90s में किया, हम फ्रेंडली ऑपोजिशन करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। और इनका आपको पता ना मुआहदा हो गया था, जो जिसका नाम था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो है ना फौज को इस्तेमाल करके एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएं। ये तो फौज को ये भी पसंद नहीं था, ठीक है ना, कि भाई ये सारे सिविलियन इकट्ठे हो गए हैं कि भाई फौज को बाहर रखना है मैदान से। तो फिर फौज ने क्या किया कि इमरान खान को आगे लेके आए, यूथ भी ज्यादा आ गई कि वो करप्शन खत्म करेगा। हाँ, देखो ना, हम क्यों, अगर आप पूरी तरह समझ नहीं रहे कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप फौरी नारे से खैर यूथ भी साथ आ गई, वो धरना धुरना दिया, इतनी उसको जबरदस्त कवरेज मिली, इलेक्शन हुआ, वो जीतना शुरू हो गया, आगे आ गया। मगर इकोनॉमिक मॉडल में कोई तब्दीली नहीं आई। इनफैक्ट जब पीटीआई की हुकूमत आई, पहले 9 महीने उन्होंने रेजिस्ट किया आईएमएफ के साथ, हम नहीं डील करेंगे। फिर उसके बाद असद क्या नाम है, असद उमर को साइड लाइन किया, शेख हफीज को वापस लेके आए, आईएमएफ के साथ डील किया, कर्जे लिए, और आपने देखा कि जो कर्जे लिए वो इतने ह्यूज थे, उस वक्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे, फॉरेन डेट्स वगैरह ये वो एक्यूमुलेट होती गई। फिर उससे डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में शुरू हो गई, और इमरान खान कि खुद फिर फौज से इख्तलाफात पैदा होने शुरू और बढ़ते चले गए और पैदा होते चले गए, सो आई थिंक आगे आपने देख लिया क्या हुआ। हाँ, मतलब आई ऑल्सो फील, आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो भी लीडर आया ना, इट्स जस्ट एट वन पॉइंट उसका मसला हो जाता है फौज से। हाँ, उलट के आपके फौज का मसला उसके साथ हो जाता है, मतलब वो जुनेजो को भी उड़ा दिया। इट्स द आइडिया कि मैं मतलब मुझे कोई, आई थिंक असद अली तूर वाज ऑन दिस पॉडकास्ट सम टाइम बैक, एंड ही वाज वी वर, एंड दिस आई थिंक ड्यूरिंग पीटीआई's गवर्नमेंट, जब डिसअपीयरेंसेस वगैरह हो रही थी, एंड ही सेड समथिंग इंटरेस्टिंग, ऐसा मतलब आई डोंट थिंक कि इमरान खान वाज मेकिंग द डिसअपीयरेंसेस हैपन, अकॉर्डिंग टू हिम। आई थिंक ही कहता है उसने एक दफा रिक्वेस्ट भी की कि यार ये चीजें ना हो, फैज को पहुंचाया भी, दिस शुडंट हैपन। Next time it happened, he said, this guy doesn't even listen to me. He got to know who's in power. And he said, it's a lot of times these things also happen. It's just, I think our prime minister sometimes actually don't have power. No, they don't. They don't really have power unless they work with a minute. Yeah. ये बिल्कुल क्लियर बात है। I mean, ऐसे वक्त भी रहे हैं कि जब ऐसी हुकूमतें इक़्तिदार में रही हैं जिन्होंने मिलिट्री को पुश बैक किया है, ये नहीं मैं डिनाई करता, मगर मेनली मिलिट्री जो है ना वो कंट्रोल में है पाकिस्तान की, और हमेशा रही है। मेरे ख्याल है हमेशा तो नहीं, अयूब खान के पीरियड से आगे बेसिकली मिलिट्री जो है वो कंट्रोल में रही है पाकिस्तान, उसको पुश बैक करना बहुत मुश्किल था, और उसकी अप्रूवल के बगैर कोई मेजर पॉलिसी पास करना पाकिस्तान के अंदर सिविलियन पॉलिटिशियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर वो करते हैं तो फिर उनकी गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरे ना एक्चुअली 2 सवाल है, एक दोनों से डिफरेंट है। एक मैंने इसी बात पे आईएमएफ का भी पूछना है कि आईएमएफ की जो इतने सारे लोन आते गए इसी हुकूमत, ये जो अब इतना डायलॉग हो रहा है आईएमएफ पे, पहले इस तरह का डायलॉग क्यों नहीं? हमें काफी लोगों को लेकिन पता नहीं चलता था इतनी। नहीं, सब पता चलता था। 90s में इतना इस पे डायलॉग रहता था अखबारों के अंदर।
एक्चुअली आपके वक्त से पहले की बात है। Yeah, so आपको याद you know, नहीं है। just there was what I also don't understand कि इतने सारे जो लोन, जैसे I also heard कि you know पिछली गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है, अगली को पता ही नहीं है, अगली को टर्म्स की नहीं पता, उन्होंने कहा हम नहीं टर्म मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं था। मैं आपको समझाता हूँ क्या था कि 90s में एक सिचुएशन ये बन गई थी कि गवर्नमेंट डिसमिस होती थी, केयर टेकर गवर्नमेंट आती थी। केयर टेकर, जिसको हम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट उस जमाने में कहते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका कोई मैंडेट नहीं होता था, IMF के साथ लोन नेगोशिएट करती थी, एग्रीमेंट करती थी, और फिर जब इलेक्शन हो जाता था, जो नई हुकूमत आती थी, वो मजबूर होती थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो नेगोशिएट कर लिया उसी को फॉलो। Yeah, so I heard that, but how does the caretaker government have that authority? They don't. But who cares in this country? But they just अभी go आपने- and have that negotiation with IMF and nobody can say anything. Nobody. अभी I'm guessing somebody power that we had आप अभी देख लें, अभी आपकी काकर साहब जब आए थे तो कितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने की और कितनी देर वो यहाँ पे रहे। हाँ, और टैक्सेशन के अंदर चेंजेस आए, पेट्रोल लेवी के अंदर चेंजेस आए, पेट्रोल की कीमतों के अंदर चेंजेस आए, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के हवाले से PIA, ये वो कई चीजें उन्होंने की जो कि प्योरली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मगर वो तो केयर टेकर थे, उनका जो काम था इलेक्शन करवा के घर जाए, मगर ऐसा तो नहीं था। आप रिकॉर्ड गंदम खरीदो, ये करो, वो करो, मतलब उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक चेंजेस। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि उनको लाया ही इसलिए गया था कि काकर साहब का अपना कोई पॉलिटिकल कैपिटल तो है नहीं, जिस तरह नून का है या पीपल्स पार्टी का है ना, इट डजंट हैव अ बिग पार्टी। सो उनको लाया इसलिए गया था कि जो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर चीजें हैं ना, वो काकर साहब कर जाए, फिर हम हुकूमत संभालें। So this was very well thought out. We will bring a nobody to bring these changes ताकि लोग उससे नफरत करें, और फिर हम जब आ जाएंगे तो हम शायद कुछ देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, लोग हमसे खुश हो जाएंगे। So ये सारा, और ये PDM ने किया, ठीक है, लेट्स बी क्लियर, ये पीपल्स पार्टी और नून वगैरह PDM जितनी है, इसने सोचा सच समझे मंसूबे के साथ ये किया कि हम एक किसी और को ले आएंगे, वो he'll do the dirty work for us, फिर दोबारा हम हुकूमत संभाल लेंगे। तो ये तो आपके सामने हुआ, आपकी नजरों के सामने। 90s में तो हुआ ही हुआ, you saw it yourself. See? अच्छा, मैं slightly different tangent पे, you mentioned एक और in Bhutto's time, जो कम्युनिस्ट सोच लोग रखते थे उनको अरेस्ट किया गया। हाँ, सी। अब मेरे बड़ा इसमें सवाल है जी, ठीक है, हाँ ठीक है, आई गेस वी वर आल्सो फाइटिंग द सोवियट्स, और भी बाद में हमने दिस इज बिफोर दैट, हम सोवियत ने ज्यादा के टाइम पे हमने फाइट होना शुरू की ना, वो लड़ाई शुरू हुई थी 77 78। या उससे पहले हमारा क्या था मसला विद कम्युनिज्म, क्योंकि हमारी तो क्यूबा से भी अच्छी रिलेशनशिप थी। नहीं थी। अच्छा, मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। हमने ना, जब हम आजाद हुए ना 47 में, तो पहले तो हम कॉमनवेल्थ के साथ थे, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ का मतलब है कि हम वो जो ब्रिटिश एम्पायर जिसमें आजादी आ गई, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ बना दिया ना, तो अभी भी कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स फेल हो जाती है, तो हम उसमें आ गए, ठीक है। दिस वाज अ न्यू फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली। मगर कॉमनवेल्थ के पास कोई पैसे नहीं थे उस पीरियड के। क्यों नहीं थे? क्योंकि ब्रिटेन हो चुका था तबाह, जर्मनी के खिलाफ जो जंग लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2, उसमें ब्रिटेन के पास कुछ भी नहीं था to give, because it had been devastated, ठीक है। लंदन was being reconstructed, एटली की गवर्नमेंट थी वगैरह। Whereas यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास बहुत पैसा था, क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 में ना, उसकी तो सरजमीन पे कोई एक बम नहीं गिरा। तो अमेरिका नाउ गॉट इनटू द कोल्ड वॉर एंड दे सेड कि कैपिटलिज्म को बचाने के लिए हम आ गए मैदान में। उन्होंने मैसिव लेवल का मार्शल प्लान दिया, यूरोप को बचाया, ठीक है, कम्युनिज्म से। और इतनी देर में 52 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसमें किंग फारूक की हुकूमत गिर गई और इजिप्ट के अंदर आर्मी टुक ओवर, फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट, जूनियर ऑफिसर्स टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड दे सेड कि हमने इजिप्ट को बड़ा ग्रो करने के लिए अब स्विस कनाल नेशनलाइज कर, वो फटा हुआ। अब जो अमेरिकन थे, शुरू में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमें इसको किसी तरह से अपने घेरे में ही रखें, नासिर को, मगर नासिर उनके घेरे से निकल गए। जैसे ही वो उनके घेरे से निकला, तो 55 के अंदर उन्होंने एक बगदाद पैक्ट बनाया। उसका मकसद ये था कि नासिरिज्म को डिफीट कर। इसको नासिरिज्म क्या था? नासिरिज्म भुट्टोइज्म ही है इजिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, सेम थे, ठीक है। और नासिरिज्म इकोनॉमिक लेवल पे बाथिज्म, नासिरिज्म, भुट्टोइज्म, नेहरूइज्म, सुकार्नो की थिंकिंग, ये सारी एक ही थिंकिंग थी। और वो ये थी कि हम फुल ऑन कम्युनिस्ट तो नहीं होंगे, मगर हम कुछ लैंड रिफॉर्म्स
कुछ कुछ की प्रिंसिपल पकड़ेंगे जो नेशनलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह ये वो करके कोई डिफरेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कर। इसको सोवियत यूनियन भी कुछ हद तक पैक करता था। उसको वो कहते थे नॉन कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसको बंच नॉनसेंस पर है उनका ये नुक्ता नजर। तो ये इकोनॉमिक मॉडल था जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर तेजी से फैल रहा। और बाय द वे ये मॉडल पहले ही लैटिन अमेरिका के अंदर भी फैल चुका। ऑलरेडी हार्बेंस वगैरह और ये सारे जो थे लैटिन अमेरिका के लीडर्स, क्यूबन रेवोल्यूशन तो खैर और चीज है, मगर उसके इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग ये मॉडल अडॉप्ट कर रहे थे लैटिन अमेरिका में। पूरी 60s में जो लैटिन अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी ना, वो बेसिकली इसी नए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तहत हुई। प्रोटेक्शनिज्म थी उसके अंदर। एक आप कह ले 45 से लेके 80 तक लैटिन अमेरिका के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो इस मॉडल पे, और इसी को और थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन एशियन कंट्रीज भी फॉलो कर। अच्छा, तो अब अमेरिका जो था ना उसने दो पैक्ट बनाए। एक का नाम था सेंटो के नासिरिज्म को डिफीट किया जाए मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वेव चल रही। दूसरे का नाम था सीटो के होचिमिन को और वियतनामीज रेवोल्यूशन को डिफीट किया। और पाकिस्तान हम दोनों इसके मेंबर थे, और चाइना को भी ऑब्वियसली से सीटो में चाइना भी हम दोनों में के मेंबर। अयूब खान 55 में हम बने और फिर वेरी सून आफ्टरवर्ड्स अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया। ओके और फिर पाकिस्तान जो है ना गंग हो एंटी कम्युनिस्ट, गंग हो कम्युनिस्ट पार्टी बैन होगी। फैज अहमद फैज को जेल में डाल दिया, हसन नासिर को मार दिया, डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन बैन हो गई, डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन बैन हो गई, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट बैन हो गई, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन बैन हो गई। सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट की एक्टिविटी बैन कर दी। पोजेशन ऑफ कम्युनिस्ट लिटरेचर एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर निकला गाड़ी से, इन यू गो। यस, I didn't know the crackdown was so serious. Oh yes, absolutely. It was a full-on anti-communist crackdown. तो कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई ना पाकिस्तान के अंदर पिंडी कंस्पिरेसी केस के बाद ही। सो एनीवे, जब ये लेफ्ट जो है सारे का सारा बैन हो गया, लेफ्ट सारा चला गया नेशनल अवामी पार्टी। खैर, सो पाकिस्तान मिड 19 बल्कि अर्ली 1950 से ही अमेरिका के साथ जुड़ चुका था और कम्युनिज्म डिक्लेयर्ड एनिमी बन चुका था, और ये कह रहा था कि हमारी फौज हर वक्त अवेलेबल है टू फाइट कम्युनिज्म। मुल्क के अंदर तो हमने इनको दबा ही दिया है। फैज अहमद फैज बड़ा आया था, सजाद ज़हीर को तो जेल में डाला, फिर उसको इंडिया भेज दिया ना, कितनी दफा होता है। नेहरू ने उसको वापस बुला लिया, तो आप वापस हमारे पास। तो ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। तो क्रश कर दिया ना कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ बाय द वे उस वक्त 50s में, अर्ली 50s में पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी सीरियस वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी। आप यकीन करें कि मुस्लिम लीग के बाद लोग समझते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। यस, अखबार थे उनके पास, and they had a popular support as well. They had popular support through their mass organizations, trade union सारी उनके साथ थी, अखबार उनके पास थे, इमरोज, पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर तो खैर सब खुद थे। प्रोग्रेसिव पेपर्स, पब्लिशिंग हाउस था उनके पास बहुत बड़ा, प्रोग्रेसिव राइटर्स की बड़ी बेजा और बड़ी इज्जत की जाती थी। फौज के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग थे जो कहते थे ये बड़े अच्छे लोग हैं। बहुत पावरफुल पार्टी। विमेन्स मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बड़ा कंट्रोल था। तो खैर उन्होंने कहा इसको तोड़ देना सारी, उन्होंने सारी की सारी तोड़ फड़क उड़ा दी उसके, अंडरग्राउंड हो गई वो सारी। तो इस तरह पाकिस्तान 50 से ही। But you can see it's interesting, even if you look at PPP, Roti Kapda Makan, you see a lot of these then means parties that come take some influence from that time. यही बात थी कि उन्होंने पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी तो तोड़ दी, मगर कम्युनिज्म के जो आइडियाज थे ना दुनिया में फैले हुए थे, उनको तो रोकना बहुत मुश्किल था ना। आइडिया को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तैमूर रहमान को रोकना बड़ा आसान है, गोली मारेंगे वो मर जाएगा। ठीक है ना, मगर आइडियाज को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है ना। तो I would hope you don't also get a bullet. I hope want to clear it out there. But also, अगर गोली मिले तो बस एस्पिरिन डिस्प्रिन की मिले। एस्पिरिन डिस्प्रिन चाहिए, let's not rather bullets. तो खैर मैं कह रहा हूँ कि आइडियाज को रोकना तो इम्पॉसिबल है। तो लेट 60s के अंदर एक लहर उभरी पूरी दुनिया में लेफ्ट के फेवर, ठीक है ना। 67, 68 के अंदर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, फ्रांस, पेरिस, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रो वियतनाम मूवमेंट पूरी उभरी, जैसे आजकल प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट है। फिर थर्ड वर्ल्ड रेवोल्यूशनरीज उभरे, मतलब इट वाज मैसिव। फिर यहाँ पे जो जितने इंटेलेक्चुअल्स वगैरह थे वो भी सारे, इवन अपर क्लास के लोग, वो सारे लेफ्ट के हो गए।
कि यार ये तो बड़ा रेडिकल नए ब्यूटीफुल आइडियाज हैं, नई सोसाइटी बनाएंगे जिसमें लोग जो है वो एक दूसरे का इस्तेहसाल नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। बहुत चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा था, वियतनाम के अंदर गुरिल्लास लड़ रहे थे, वहाँ क्यूबन रेवोल्यूशन, चे गवारा वाज अ ह्यूज सिंबल ऑफ द 60s, ह्यूज, मतलब ही वाज एडमायर्ड। फिर मुस्लिम दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो गए, इराक के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। सॉरी, एनएस कैप, वो जो चे की, हाँ बरेज उसके थे। Yes. तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो गए ना, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हुए। 58 के अंदर वहां पे क्या नाम है उसका, लेबनान के अंदर मूवमेंट हुई, वहां यूएस मरीन्स आए। फिर उसके साथ इराक के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, यमन के अंदर मार्क्सिस्ट केम टू पावर। यस, किसी को पता ही नहीं है कि यस मुसलमानों का वाहिद ऐसी कंट्री है जो जहां मार्क्सिस्ट लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी इकतदार में रही, वहां सिविल वॉर चली बड़ी लंबी। I had no idea. That is so interesting. Yes, people don't know it was a huge movement. इराक के अंदर 1 मिलियन कम्युनिस्ट मेंबर होता था, फिर इन्होंने सदाम को लाके उनको मारा मरवाया वगैरह। ईरान के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट थी। मुसद्दक केम टू पावर इन 53, एक्चुअली केम आउट ऑफ पावर इन 53, बट वो बहुत मतलब लेफ्टिस्ट नेशनल फ्रंट उसका था। अच्छा, फिर लिबिया के अंदर गद्दाफी केम टू पावर, वो भी लेफ्टिस्ट था। अल्जीरिया के अंदर एफएलए केम टू पावर, वो भी लेफ्टिस्ट थे। तो एक स्वीप हो रही थी मुस्लिम वर्ल्ड में लेफ्टिस्ट को। ये लोग अराफा भी सारे लेफ्टिस्टों के साथ जुड़ा हुआ था, लेफ्ट का बंदा कंसिडर किया जाता था। जॉर्ज हबाश वगैरह, मतलब अफगानिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन हो गया भाई, कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आ गए। अनदर कंट्री जहाँ कम्युनिस्ट इक़्तिदार में थे, लोग तो ये याद रखते हैं कि सोवियत यूनियन वहां पे आए, ये भूल जाते हैं कि कम्युनिस्ट वहां पे इक़्तिदार में थे बिफोर द सोवियत यूनियन केम देयर। यस, डिड यू नो दैट्स अनदर कंट्री विद अ कम्युनिस्ट, मुस्लिम कंट्री विद अ कम्युनिस्ट हैड पावर। सो अमेरिका ने फिर पूरा एक जो है ना प्लान बनाया, जहादी प्रोजेक्ट बनाया है, जियाउल हक को सपोर्ट किया, ऑपरेशन साइक्लोन उसका नाम था, यू नो चार्ली विल्सन वॉर वगैरह आप देखें, तो वो सारी उन्होंने फंडिंग की, या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट किया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट किया, कम्युनिज्म तो को गदर कर दिया ना हमने, उसको हमने छोड़ भी दिया उन लोगों को, we didn't give any, बस हमने तबाह कर दिया। क्या और करना था, उसने उस चीज में तबाह कर दिया ना। जो अमेरिका का वो पूरा काउंटर रेवोल्यूशन था, उसने सोसाइटी और पाकिस्तान के अंदर हमें भी तबाह कर दिया। तबाह किया उसने। पाकिस्तानी सोसाइटी और अवाम सोसाइटी के अंदर से वो एलिमेंट्स जो कि आप कह रहे सबसे ज्यादा पसमानदा थे, उनको इतना ताकतवर बना दिया कि सोसाइटी उनकी हॉस्टेज हो। अच्छा, so the last two topics जो मैं टच करें, yes, one I want to end it with the budget जो हमारा अभी रिलीज भी हुआ है. I kind of want your feedback on that too, but I think that's a very important thing for the country right now. But before we go there, I really want to know your journey with Marxism and communism, and also, you know, even including myself, I think हमें even I want get, you know, in the most basic terms, कोई बंदा बता देगा कम्युनिज्म है क्या, और पाकिस्तान में उसकी क्या मूवमेंट है, क्या कितनी चल रही है, क्या चल रही है, एंड सो मेरी पर्सनल जर्नी तो इस तरह से है कि because I feel your activism journey is very much related with Marxism as well, right? Yes, of course it. मगर मेरी जर्नी कुछ इस तरह के मेरे माँ प्यो तो लेफ्ट से ही ताल्लुक रखते थे ना, ठीक है, तो आई ग्रो अप विद दीज आइडियाज। एक मेरे लिए नई बात नहीं थी, मगर जब मैं टीनेजर था तो मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं था। मुझे टीनेजर्स वाला शौक था, गिटार बजाऊंगा, लंबे बाल रखूंगा, कुड़ियों को इम्प्रेस करूंगा, ठीक है, श्योर। फिर मैं चला गया कॉलेज, मैंने इनके बारे में चीजों के बारे में मजीद पढ़ा, फिर मैंने बाल भी कटा लिए और मेरे शौक भी तब्दील हो गए, ठीक है। बाल तो यू कैन है, मतलब चे के भी थे, सबके सब रेवोल्यूशनरीज के बाल तो वैसे they were all मान लेते हैं, and you know, मगर वो एक रिबेलियस फेस। तो एनीवे उसके बाद बहरहाल मैं कॉलेज वगैरह के बाद जब मैं वापस वगैरह आया, तो उसके बाद से अब तक आई हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी लेफ्ट। हाँ, और यही पार्टी मेरी थ्रू आउट, मैं इसी में रहा हूँ। मैं पार्टियां चेंज नहीं करता, एक ही। तो उसके अप्स एंड डाउन्स वगैरह भी देखे। तो ये है क्या, बेसिकली ये है कि गरीबों को जो है ना सियासी इख्तियार देना, इख्तियार देना, ये है इन अ नटशेल। इन बाकी सारी बातें जो है ना इधर उधर लोग करते रहते हैं, वो नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो असल काम नहीं है। असल काम ये है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो आम आदमी है, उसने इख्तियार लेना है, सियासी इख्तियार, ठीक है। पॉलिटिकल पावर उसके पास होनी चाहिए।
बस दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, जब ये होगा तो जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो यही कहेंगे कि यार ये जो सारी दौलत वगैरह है इसको शेयर करते हैं, ये जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेट्स वर्क एट देम कलेक्टिव। ठीक है। राइट। तो ये है कम्युनिज्म। पाकिस्तान में कम्युनिज्म क्या होगा कि क्योंकि अभी हम एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी नहीं है, तो पहले लेवल पे अगर गरीब इक्तदार हासिल करता है, लेफ्ट इक्तदार हासिल करता है, कम्युनिस्ट अगर लेफ्ट सोशलिस्ट वगैरह इक्तदार हासिल करते हैं, तो पहले लेवल पे हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए, और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। अब ये जो फेज होगा पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जो फेज होगा, इसमें एक ट्रांजिशनल इकोनॉमी बनेगी जो कि मूव करेगी टुवर्ड्स सोशलिज्म। ठीक है। अब उसमें भी कई सारी इफ्स एंड बट्स हैं। इफ्स एंड बट्स ये हैं कि फर्ज करो दुनिया के अंदर सोशलिज्म फैल जाए, फिर जारी बात है ट्रांजिशन जो है वो 1 साल में भी मुक सकती है। अगर हम अकेले ही कर रहे होंगे तो फिर ट्रांजिशन हो सकता है लंबी हो जाए। ठीक है। और सो वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन, मगर ट्रांजिशन के अंदर कोई मिक्स्ड इकोनॉमी बने जिसमें कैपिटलिज्म भी कुछ होगा, इट कांट बी विदाउट। यस, जिसमें कुछ हद तक कैपिटलिज्म भी होगा और सोशलिज्म भी होगा। उसकी वजह ये है, इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है ना, जो क्लास स्ट्रक्चर है, उसमें ज्यादातर प्रोडक्शन पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन है। याद है ना, शुरू में आपको कहा था 4-5 छोटी बनी नहीं हुई रेडियां लगी हुई हैं, छोटे लोग, हाँ अभी जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस होती है ना, इनको नेशनलाइज तो नहीं आप कर सकते ना, रिडिकुलस रेडी वाले को नेशनलाइज करेंगे बैठ गए। तो पहले इनको ट्रांजिशन करना पड़ता है टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे सोशलिज्म बन सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशनल एक स्टेज होगा जिसमें हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो इमीडिएटली सोशलिस्ट बना सकेंगे, लैंड रिफॉर्म भी करेंगे ताकि वो जो फालतू जमीन है उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल की जाए, और एट द सेम टाइम जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसको लार्ज स्केल सेक्टर में ट्रांजिशन करने का एक प्रोग्राम बना, और वो जो है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी ही रहेगी। स्मॉल स्केल सेक्टर को हम नेशनलाइज सोशलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं बना सकते, that will take a while, it will take a transitional period. ये होगा हमारा इकोनॉमिक मॉडल। यही काम इस वक्त वियतनाम में भी होगा। सही है। और वियतनाम इज वन ऑफ एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। उनका ग्रोथ रेट 7-8%। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम वियतनाम का मॉडल, एक मॉडल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त के हालात में तो यही लग रहा है कि अगर हम अभी इक़्तिदार हासिल कर लें तो हम प्रोबेबली वियतनामीज मॉडल के लिए जाएंगे। आगे देखेंगे हालात अगर तब्दील हुए तो हमने बेहतर मॉडल भी ला सकें। बट क्या एंड एज यू डिस्कस IMF और ये सारे जो हम पॉलिसीज हमें करनी पड़ती हैं विच आर नॉट गुड, जो इतने सालों से हो रही हैं फॉर द पुअर क्लास, और जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है जो उनको और दबा रही है, और इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो रिच है कीप गेटिंग रिचर। बट सिंस जो हमारी पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक कंडीशन है वेयर वी कैन डिपेंडेंट ऑन व्हाट IMF सेज, कैन वी डू इवन एनीथिंग? यस वी कैन इस सेंस में कि देखिए IMF पे हम डिपेंडेंट किस वजह से हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हमारा इशू है। अच्छा, उसमें वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग क्यों हमें चाहिए होती है, क्यों बार बार हम वहां पे जाते हैं, उसकी पीछे एक वजह ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को बनाया हुआ इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक है, हम इम्पोर्ट्स के बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, हमें एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर पाकिस्तान को, मैंने कहा था ना, सबसे पहला कदम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना होगा। इससे पहले कि हम वो मिक्स्ड इकोनॉमी बना सकें, सोशलिज्म तो बात की बात है, कम्युनिज्म उससे बात की बात है। पहला कदम होगा पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना। ठीक है, अब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें एक ट्रांजिशन करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट करनी होगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि लैटिन अमेरिका ने भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वो ISI मॉडल से डेवलप की। ISI वाले भी खुश हो जाएंगे इस बारे में। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। जी हाँ, ताकि हम अपना फॉरेक्स जो है वो बचाएं। और जो सिर्फ वाइटल कमोडिटीज हैं जिनके बगैर हम कर ही नहीं सकते, वो हम बाहर से मंगाएं। ऐसे करें। ठीक है,
तो ISI policies will be the first step to make And us. if I'm not wrong, India also did some Of of course. this, right? हमने गाड़ियों ताता वगैरह और सारा was part of all this. सारी डेवलपमेंट ही उन्होंने जो अर्ली स्टेज में की है नेहरू हाँ. पीरियड में, वो सारी ISI डेवलपमेंट थी. ISI डेवलपमेंट जो है ना, वो शॉक हो गए होंगे लोग, इंडिया के अंदर भी ISI की डेवलपमेंट की है. इंडिया की डेवलपमेंट का क्रेडिट ISI को जाता है. वो यादव उन्होंने इसलिए भेजा था, वो सीख कर आए कि कैसे डेवलपमेंट करनी है. Anyway, तो यह सारी पॉलिसी उनकी ISI ही थी. और उसकी वजह से ना इंडिया के पास एक ऐसा इंडस्ट्रियल बेस आया जो कि बहुत ही जो कि इंडिपेंडेंट था. अब देखिए ना, जब अमेरिका उनको ये कहता है कि रशिया से आपने तेल नहीं खरीदना, तो चाहे इंडिया क्या जवाब देता है? इंडिया कहता है हम तो खरीदेंगे, कर लो जो करना है. हाउ डू दे गेट अवे विद इट? व्हाई कांट वी गेट अवे विद इट? बिकॉज उन्होंने ISI करके अपनी इकोनॉमी को एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाया. वो इस तरह डिपेंडेंट नहीं है हमारी तरह, जिस तरह हम उनके लैक ऑफ बेटर वर्ड, हमारी औकात नहीं है अभी. हमने अपनी औकात ही तबाह कर दी है मतलब. हाँ, क्योंकि अयूब खान के पीरियड के अंदर जो मॉडल हमने अपनाया था ना, जो अमेरिका से ही बन के आया था, उसमें गुस्ताव पापेनिक का बड़ा अहम किरदार था. बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट था. सैमुअल हंटिंगटन का भी अहम किरदार था. ये हार्वर्ड ग्रुप था बाकायदा इकोनॉमिस्ट का, जिसने पाकिस्तान को आके ये इकोनॉमिक पॉलिसी दी. ओके. उसके बाद से हम जो है ना, वो एक पाथ में फंस गए, डिपेंडेंसी के पाथ में फंस गए. सो सबसे पहला कदम ये होगा कि उधर से निकलना है. उधर से निकलने के लिए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी. इंपोर्ट्स पे पाबंदियां लगाएंगे, महंगा करेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे पाकिस्तानी क्लोज सब्स्टिट्यूट से. जो चीजें हमें महंगी मिलती हैं दूसरी, वो ईरान और रशिया से मंगाएंगे, तेल गैस वगैरह. ठीक है. और इस तरह से जो है ना ट्रांजिशन करेंगे टू बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट. फर्स्ट स्टेज के पाकिस्तान को कर्जों से निकालना है और एक खुद मुख्तार मईशत बनाना. ये पहला कदम. और ये निकल सकती है, बाय द वे. ये इतना भी बड़ा कर्जा नहीं है हमारे ऊपर कि हम नहीं निकल सकते. देखो ना, वो जो हम 1-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF की सारी शराइत मानने पर कब मजबूर हो जाते हैं. हाँ, that's kind of It's not a big amount. It's not, because like एक नॉर्मल आप US के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, इससे बहुत ज्यादा एक स्टार्टअप या पता नहीं किसको, वो 3 कोई बच्चे होंगे जो वैली में बड़े हैं और उनको पैसे मिल गए होंगे इतने. मगर उसके लिए करना ये पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट लेड कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है ना, ये खत्म करनी होगी. ये पेनफुल ट्रांजिशन होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ. अगर मैं आ गया तो थोड़ी सी पेनफुल ट्रांजिशन होगी. हाँ, क्योंकि जो ये महंगे महंगे इम्पोर्ट्स है ना, इनको हमें बंद करना होगा. ठीक है, कुछ वक्त के लिए इनको बंद करना होगा ताकि हम अपना फॉरेक्स बचाएं. और जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हम कमा रहे हैं, वो हम ट्रेड सरप्लस में चले जाएं. Okay. जब हम ट्रेड सरप्लस में होंगे, फिर हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी. तो इट्स ओनली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, उसी की वजह से हमें कर्जा पड़ता है ना, बैनुल अक़वामी कर्जा. ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं. तो इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाएंगे, एक्सपोर्ट उम्मीद है कि कम नहीं होंगी. तो जब हम पाबंदियां लगाएंगे इंपोर्ट्स पे, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह के जरिए, जिस तरह साथ डार ने भी किया था, मगर कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर हम ट्रेड सरप्लस में जाएंगे. जब हम ट्रेड सरप्लस में जाएंगे तो हमें फिर डॉलरों को उधर से IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी. मेरा इसमें सवाल है, बट व्हाई इजंट देयर अ पॉलिटिकल विल देन टू डू दिस? उसकी वजह ये है कि अगेन जो हमारी एलीट है, वो एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन साइकिल के साथ जुड़ी हुई है. तो उनको प्रॉफिट होता है. नहीं, प्रॉफिट नहीं होता. आप जिस गाड़ी में, और इट इज जस्ट luxury that we like. Yes. Okay. And I don't blame people for liking luxury. Everybody likes luxury. Got it. But we can't afford it. ठीक है ना. हम इतनी तेजी से इंपोर्ट करते हैं चीजें कि we cannot pay for them. और फिर उनको पे करने के लिए हम कर्जे लेते हैं. तो ये कट करना पड़ेगा आपको. इंपोर्ट कट करने पड़ेंगे आपको. ये लग्जरी इंपोर्ट्स वगैरह और बहुत सारे और इंपोर्ट्स भी जो फजूल हैं, उनको कट करना पड़ेगा, और ताकि हम सरप्लस क्रिएट करें अपने लिए. जब सरप्लस क्रिएट होगा तो फिर हमारे पास रूम टू मनूवर पैदा होगा. क्यों नहीं ये करते? बिकॉज ये क्यों नहीं मैं उसका अच्छा, गर्मी चेक कर रहा. हाँ, तो ये नून लीग क्यों नहीं करती, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करती, PTI वाले क्यों नहीं करते? कुछ हद तक करते हैं बाय द वे, मगर वो करते हैं एज अ स्टॉप गैप मेजर. वो करते हैं जब एक्सट्रीम केस होता है, थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं इंपोर्ट्स और फिर दोबारा चला देते हैं. Like I feel even with this taxes. सॉरी, मसला ये होगा कि अगर मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए बंद करूंगा
तो बहुत एक इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्स दैट कॉस्ट? कॉस्ट यही होगी कि जिन लोगों के बिजनेसेस इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, उनको नुकसान तो होगा ना यार। वो चीजें नहीं आ रही होंगी। अब मैं अगर गाड़ियां इंपोर्ट करके बेचता हूँ, तो इंपोर्ट्स अगर बंद हो जाएंगे गाड़ियों के, तो उनको नुकसान तो होगा ना, होगा ना। मगर समझाना, बट अगर एक लोकल इंडस्ट्री हुई तो हाँ, तो वो भी आप लोकल गाड़ी ले। हाँ, एडम एक आएगी ना, स्टार्ट लोग ले। हाँ, लोग ले। जिस तरह इंडिया ने कितना अरसा अपनी लोकल गाड़ी चलाते रहे ना, वो हम उनका मजाक उड़ाते रहे, मगर फायदा हुआ ना उनको एंड में जाके। तो फिर आप महंगे महंगे फोन नहीं ले सकेंगे शायद, अगर मैं आ जाऊं। लेटेस्ट आईफोन 21 आपको शायद नहीं मिलेगा। हाँ, मगर थोड़ी देर के लिए ये करना जरूरी होगा हमारे लिए, ट्रांजिशन के लिए। थोड़ी सी बेल्ट टाइटन करनी पड़ेगी इलीट को भी, कि यार थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, वरना बहुत दर्द सहना पड़ेगा, वरना इसी तरह तो खप जाएंगे, मर जाएंगे यार। ये तो बड़ी विशियस साइकिल है लोगों हाँ, पे। विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ, नो पेन नो गेन कहते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, तो थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी। मगर ये जो पेन दे रहे हैं ना औरंगजेब साहब, ये पेन दे रहे हैं सैलरीड क्लास, ये पेन दे रहे हैं कंज्यूमर को। देखिए, सैलरीड क्लास को तो उन्होंने शाहजेब को बयान दिया है ना, जिसके अंदर उन्होंने कहा है ये टैक्स सिर्फ सैलरीड क्लास के ऊपर नहीं है, ये टैक्स बाकी उसके ऊपर भी है, जिसकी वजह से जो कि एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि सैलरीड क्लास को हम लोग बर्डन कर रहे हैं। हाँ। तो वो वाली चीज तो एक टोटली उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट उसको कर दिया है ना, उसको अपोज कर दिया कि सैलरीड क्लास में सिर्फ नहीं हम लोग टैक्स लगा रहे। हाँ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझ आए आप कि हाँ, हम सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा रहे हैं, मगर सिर्फ सैलरीड क्लास को नहीं हम ब्लास्ट कर रहे हैं, हम सबको ही ब्लास्ट कर रहे हैं। इससे कोई हमें कोई बेहतरीन तो नहीं उसने बेसिकली ये कुछ कहा था कि इतनी सैलरी में तो डायरेक्ट टैक्स निकल ही आता है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट टैक्स फ्रॉम अदर पीपल। बेसिकली वो ये कह रहा है कि औरंगजेब साहब ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं ना, ताजिर हैं, उनपे इम्पोर्ट, अब उनपे कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स वगैरह वो बढ़ाना चाहते हैं, वहां से वो ज्यादा निकालना चाहते हैं, मगर सैलरी क्लास पे भी टैक्सेस बढ़ गए। यू कैन जस्ट लुक एट द फैक्ट्स। अच्छा, 18,812 बिलियन रुपीस का बजट पेश किया औरंगजेब साहब, बट उस बजट के अंदर से 2,122 बिलियन रुपीस, जो कि 15% हाइक है, and one of the greatest hike in the history of Pakistan, in Pakistan Army's budget. Despite a country which is facing, higher rates of inflation, economically deplete कर रही है, ये cash trap country है, poverty data नहीं वो अपना release कर रही है. How do you take this? Before this, just we have to say one thing: Pak Army Zindabad. Go on. नहीं, देखो, we have to make the case. Public has to make the case, क्योंकि पार्टियों ने तो करना नहीं, क्योंकि पार्टियां जो है ना वो डरती हैं कि हमारी हुकूमतें गिरती हैं। अब तो आप और मैं तो हुकूमत में है नहीं, तो हमें परवाह नहीं कि हुकूमत हमारी उगरने लगी है। वी हैव टू मेक द केस के एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान डिफेंस का, जिसके हर सिपाही, हर फर्द ने ये हलफ उठाया है कि वो अपनी जान देने के लिए कुर्बान है मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ऐसे ही when you become a soldier, when you become a general, when you become a sergeant, when you become a lieutenant, etc., colonel, whatever you are, आप हल्फ उठाते हैं कि you will give your life, you put your life on the line. ठीक है, वो फख्र भी करते हैं इस बारे में कि हम वो इदारा है। तुम तो नहीं ये कहते ना कि मैं चांद हाजिर है, तुम तो कहती हो कि प्रॉपर गंडा नहीं चला तो शायद मैं कैनेडा चला जाऊंगा। हम तो गर्मी में खराब हो रहे हैं। तो गर्मी में हम तो इलाज नहीं कर पाते। मगर वो कहते हैं कि वो जान देंगे। या हम अगर उनसे ये कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जो इदारा जान देने के लिए तैयार है, वो थोड़ा सा बजट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। द केस हैज टू बी मेड। जो बंदा जान देने के लिए, अगर तुम जान मेरे लिए देने के लिए तैयार हो, मैं कहूँ यार जान नहीं चाहिए, 100 रुपया दे दो बस, ठीक है ना, तो कहोगे यार जान हाजिर है, 100 रुपया का चीज है कि नहीं? सो दिस हैज टू बी द केस दैट वी हैव टू मेक पावरफुली नाउ कि जनाबे अली, इकोनॉमी का जो हाल है इस वक्त और मुल्क का जो हाल है, बेसिकली यू हैव टू उतनी ही बड़ी फौज आप रख सकते हैं जितनी बड़ी इकोनॉमी अफोर्ड कर सके। उससे बड़ी फौज आप रखेंगे तो इकोनॉमी जो है वो क्रैश करेगी और उसका नुकसान फौज को भी होगा, हम लोग को भी होगा, सबको ही होगा। 3.7 तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें। 3.73% जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट किया औरंगजेब साहब ने। You think that is achievable under such, tense situations and conditions that have been laid out by IMF? मैं ये वो उसकी जो प्लानिंग है ना, वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, PSDP, अंडर व्हाट्स हिज नेम, एहसन इकबाल साहब, who's a very competent मिनिस्टर बाय द वे, वो उसके जरिए
इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि और वो बहुत बड़ा बाय द वे जंप मारा है उन्होंने इसमें, तकरीबन आई थिंक 2.40-50% उन्होंने बढ़ाया है। हाँ जी। अच्छा मगर आप पिछले साल का पीएसडीपी डेटा उठाएं, ठीक है, उन्होंने इसी तरह बहुत बड़ा पीएसडीपी जंप किया था, मगर जो उनको एक्चुअल एलोकेशन हुई थी वो कम हुई थी, क्योंकि जब रिटर्न्स कम हुए तो उन्होंने सबसे पहले पीएसडीपी को स्लैश किया। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर बिल फर्ज वो जो 20 बिलियन उनको एक्सपेक्टेशन है कि बाहर से आएगा पैसा, और वो जो एक्सपेक्टेशन है कि हम तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टैक्सेस में रेज करेंगे, है ना, रियलिस्टिक पॉसिबल और नॉट, इट्स वेरी अनरियलिस्टिक, और 9.5 ट्रिलियन जो है हम डेट सर्विसिंग में देंगे। हाँ, तो ये जो सारा उन्होंने अनरियलिस्टिक किस्म का एस्टिमेट बनाया हुआ है, टोटली अनरियलिस्टिक। जब ये फ्लॉप होगा ना और ये रेवेन्यूज नहीं इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले किसका बजट स्लैश होगा? फौज का नहीं होगा, बलूचिस्तान का नहीं, पीएसडीपी का बजट स्लैश होगा। और उस पीएसडीपी के बजट के अंदर ही उन्होंने एलोकेट करना है ना सूबों को एंड so हाँ, तो ये पीएसडीपी का बजट कट होएगा, और जो उन्होंने इस वक्त बजट किया हुआ उनको वो रकम मिलेगी नहीं, और अगर वो रकम नहीं मिलेगी तो इनकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है कि हमने 3.5% से ग्रो करना है, वो उसको अचीव करने में कामयाब नहीं होंगे डिस्पाइट दी कॉम्पिटेंस ऑफ एहसान इकबाल। ये है सबसे बड़ा कैच 22। सो आईएमएफ से जो 6 से 8 बिलियन डॉलर्स का लोन मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर? ये आपके कहने का नहीं, वो उसकी कंडीशन और है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा आफ्टर दिस बजट द आईएमएफ अग्रीज, वो अभी हो जाना है विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। दे आर होपिंग देयर इनफैक्ट सूनर गवर्नमेंट की उम्मीद होगी कि वो आईएमएफ से में हम उनको बजट देंगे, दिखाएंगे कि आपके इन लाइन विद योर रिकमेंडेशन। वो जो नहीं, आईएमएफ से तो शायद उनको मिल जाए, दैट इज रियलिस्टिक, बट आईएमएफ देखो लोन इतना बड़ा नहीं है, 3 साल में आपको 6 बिलियन मिलते हैं, दैट्स 2 बिलियन अ ईयर, इट्स नॉट अ बिग लोन। एक्चुअल बात ये होती है कि आईएमएफ जब लोन देता है ना तो दूसरे कमर्शियल इदारे और नॉन कमर्शियल इदारे अनलॉक हो जाते हैं, वो आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आईएमएफ आपको लोन नहीं देता तो सऊदीया से भी नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सऊदीया इज अ डिफरेंट केस, बट आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं मिलेगा, आपको कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको इस किस्म की और डेवलपमेंट एजेंसी से पैसे नहीं मिलेंगे, और वो ज्यादा पैसे होते हैं आईएमएफ के मुकाबले में, मगर उसका रेट भी ज्यादा होता है उसका इंटरेस्ट रेट, वो कमर्शियल लोन्स होते हैं, दे आर कमर्शियल लोन्स इन डॉलर्स that have to be paid back in dollars. तो उसपे जो इंटरेस्ट रेट होता है, कमर्शियल इंटरेस्ट रेट होता है, ऊपर से डॉलर की अप्रिसिएशन होती है, वो बड़े महंगे लोन होते हैं हमारे लिए। I also think, you know what, it's also in terms of मतलब बॉयज का जो बजट की बात है, हाँ, I think the political will again is not there because they also know कि इनको तो तोड़ना बड़ा आसान है, they will never stand together for it, even if you look at अभी जो गवर्नमेंट है, हाँ, इसके भी मेन लीडर को बॉयज ने जलील करके निकाला, हाँ, एक दफा नहीं, पिछली हुकूमत के साथ पिछली हुकूमत के साथ भी यही हुआ। So it's but they will still, the पिछली हुकूमत still wants to talk with the man in, you know, the high castle. Of course. So पहले you have to make the economic case and you have to make a strong case, not an emotional one. ठीक है, जज्बात अपनी जगह, फौज का बेकाट, you have to make a clear case कि ये देखें। But what's a convincing economic case that the, you know, they will also agree on? आप कहें ना कि where is this money, how much money do you want to save, number one, where can it be cut from non-combat expenditures जिसको हम कहते हैं, ठीक है, number two, where will it be spent, if it's not spent here, where will it be spent, ठीक है, number three, you know, what will be the potential benefits of that, of doing that in 5 years time, 3 years time, 10 years time, etc. etc. इस तरह का अगर आप एक इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं कि लुक सर दिस इज हाउ वी वांट टू प्रोसीड, अच्छा फिर ऑब्वियसली आर्मी हो सकता है ये कहे कि जी बट दीज आर आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, राइट, इंडिया के खिलाफ हमने लड़ना है, ये करना है, वो करना है, बट अगेन देन द केस हैज टू बी मेड कि हमने न्यूक्लियर बम बनाया इसलिए था कि हमारे पास डिटरेंट हो, राइट, तो अगर हमें कन्वेंशनल डिटरेंट भी चाहिए और हमें न्यूक्लियर डिटरेंट भी चाहिए और हमें सारे किस्म के, तो ये तो फिर you know it doesn't make sense. So we have to make a very good strong case and then जो कि non partisan हो, ठीक है, then the political parties have to get behind that case and say yes, ये देखें ये इकोनॉमिक प्लान है, इसमें ये डेटा है हमारे पास और this is what we're going to stand on. और वो जिसको कहते हैं ना अमेरिकन पॉलिटिक्स में बाई पार्टिजान
कंसेंसस, ऑल पार्टीज का कंसेंसस हो कि ये इसके अंदर लिमिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यू कैन ऑलवेज से कि अगर आपने बजट बढ़ाना है किसी इदारे का, वो उतने परसेंटेज से ही बढ़े जितने परसेंटेज से जीडीपी बढ़ती है, राइट? अगर जीडीपी 3% से बढ़ती है तो एक इदारे का जो टैक्स रेवेन्यू भी 3% से बढ़ सकती है फिर, विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग एनीवन। एक इदारे के रेवेन्यूज भी 3% से बढ़ सकते हैं फिर, ठीक है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर जीडीपी ग्रो कर रही 3% से और आपका इदारा ग्रो कर रहा है 10% से, तो इसका मतलब है पर कैपिटल जीडीपी की इकोनॉमी के टर्म्स में आपका इदारा तेज ग्रो कर रहा है इकोनॉमी से और बोझ बन रहा है इकोनॉमी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरह करके आप एक मॉडल बनाएं, इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, मॉडल बनाएं। और बाय द वे यही मॉडल हमें एजुकेशन के हवाले से भी बनाना चाहिए और हेल्थ केयर के, ये 3 चीजों पे बना लें आप, ठीक है? और आईपीपीज भी, ठीक है, जो बहुत बड़ा सिर दर्द है हमारा। इस तरह की हम मतलब आईपीपीज का मसला तो बस 90 से चलता ही और चलता ही जा रहा है, तबाह कर दिया मईशत को, तबाह। और वो भी सुना एक साइकिल है, क्योंकि उन पे भी वो भी अब डेट में है, हम उनके डेट में हैं, उन्होंने फिर ऑयल लेने हैं, बिल्कुल क्रेजी है वो। सो एनीवे, इस किस्म के हम मैं अगर इक्तदार में हूं तो आई वुड गेट द बेस्ट ब्रेन्स इन पाकिस्तान टू मेक मी अ प्लान ऑफ दिस सॉर्ट कि हर इदारे को कितने से ग्रो करना है, कितने से ग्रो नहीं करना, इन ऑर्डर फॉर द ऑप्टिमम आउटकम एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। और वो ऑप्टिमम आउटकम मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनानी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से औरंगजेब साहब ने किया है कि आईएमएफ वाले लोन कब देंगे। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है कि मैं पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार कंट्री बनाना चाहता, ठीक है? दिस वुड बी द ब्रॉड आउटलाइंस। गाड़ी में बैठे तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं शेयर कर रहा हूं, मगर ब्रॉड आउटलाइंस उसकी ये होगी, ठीक है? और इसे एजुकेशन का भी यही मामला है कि 20-25 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है। क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आप कैसे बनेंगे? आप तो जाहिल अगर लोगों को रखेंगे तो, ठीक है? सो इस तरह की प्लानिंग की हमें जरूरत है। हमारी प्लानिंग नहीं है, हमारी है फायर फाइटिंग, और उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आईएमएफ से अगला कर्जा हमें आ जाए, और इस साइकिल में हम फंसे हुए हैं, पता नहीं कब से यार, निकल ही नहीं रहे। वो कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हमारी ये क्या आईएमएफ से ऊपर ही नहीं जा रहे, तो हम अपनी एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं रहे। यस, बिकॉज पूरा मॉडल ये है। या और देखो, हमें रियलाइज नहीं होता, हमारे इकोनॉमिस्ट ने भी हमें क्लैरिफाई नहीं किया कि भैया जो कंट्रीज ग्रो कर रही हैं ना, वो ये मॉडल नहीं अपना रहे। लाइक चाइना, वियतनाम, उन्होंने नियो लिबरलिज्म नहीं अपनाया। आपने सुना चीन के अंदर कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही भाई। इनफैक्ट स्टेट सेक्टर वहां पे बहुत स्ट्रांग है और मजीद स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो है वहां स्ट्रांग, हाँ, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं मगर वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करते, ठीक है? और उन्होंने ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम रखा हुआ है, मेजर प्राइसेस उनकी कंट्रोल्ड है, इसीलिए वहां इन्फ्लेशन कोई नहीं है। ना वियतनाम में अब इन्फ्लेशन है, ना चाइना में इन्फ्लेशन है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो टोटली स्टेट कंट्रोल्ड है उनकी प्राइसेस। आप वहां पे रोटी की कीमत नहीं बदल सकते, गवर्नमेंट ने सेट करनी है रोटी की कीमत, खत्म हो गई बात, पता है आपको? तो हाँ, फोन की कीमत ऊपर नीचे हो जाएगी क्योंकि वो आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन है, बेसिक चीजों की कीमत नहीं हिलती चाइना के अंदर। दिस इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट आईएमएफ सेज। आईएमएफ कहता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइसेस मस्ट बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। चाइना इज नॉट फॉलोइंग दैट मॉडल। भाईजान, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? पढ़ो तो सही। चाइना तो कहता है, कोई ना वियतनाम कहता है ना चाइना कहता है। आई थिंक यूएस भी फुली, इफ यू रिमेम्बर, जब वो फाइनेंशियल कोलैप्स आया है, जब गवर्नमेंट ने हैंड और पैसे दिए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज पे, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि क्यों दे रहे हैं। बट आई थिंक दे आल्सो बिलीव इन सम एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होती है। जब हम जो है ना, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ये भी इकोनॉमिस्ट आपको नहीं बताते, वी आर मोर ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शॉक हो गए हो? We are more of a free market economy than any of the advanced capitalist countries. शॉक हो गए? In what way? In this way कि आप खुद अंदाजा करें कि वहां पे की गवर्नमेंट जो है, उसका जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है अपनी सोसाइटी में, वो 40 to 50% में होता है। 40% of the, sometimes 35, sometimes 40% of the US economy is controlled by their government. टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखो वहां पे कितना हाई है, कितने टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट्स आर ह्यूज इन दीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। फ्रांस के अंदर ओवर 50% ऑफ देयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर बेसिकली इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इन कंपेयर टू द इकोनॉमी। इतनी ह्यूज गवर्नमेंट है फ्रांस की, पता है? और पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट द केस।
tax to GDP ratio in Pakistan is 9.5%. Actually, we have a very small government. हमारी गवर्नमेंट बहुत बड़ी नहीं है, और ये ऑब्सेशन हुआ है। औरंगजेब साहब की कल तकरीर सुनी ना आपने? ऑब्सेशन, गवर्नमेंट पर हमने निकालनी है, फ्री मार्केट। गवर्नमेंट है ही किधर भाई? कितनी है ये गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो सिर्फ पुलिस तो सिर्फ एलीट के लिए यूज होती है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एलीट के लिए यूज होती है। गवर्नेंस तो है ही कोई नहीं मुल्क के अंदर। जिसका दिल चाहता है जिसको मार के चला जाता है, जिसका दिल चाहता है वो बस्तियां जला के चला जाता है। कौन सी गवर्नेंस नजर आती है आपको? गवर्नमेंट तो है ही कोई नहीं। क्वांटिटी काफी है गवर्नमेंट की, गवर्नेंस नहीं है। नहीं, क्वांटिटी भी कोई नहीं, क्वांटिटी भी कम है। कुछ भी नहीं है क्वांटिटी। फौज बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, बट गवर्नमेंट कैन बी बिगर। देखो आप देखो कि लोगों की नीड्स के हिसाब से देखो, ये वापडा का बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइनों का हाल देखो क्या है। कौन है यहाँ पे ठीक करने वाला इन लाइनों को? इतना ह्यूज लॉस होता है आपको इन लाइनों की। या दिस इज अ बिग वो की वजह से हमारी 17 to 20% लॉस, लाइन लॉस हो रहा है आपको यहाँ पे। ट्रांसमिशन सिस्टम आपका जो है 25,000 मेगावाट्स के, दिस इज अ बिग फैक्टर इन जो हमारे एनर्जी प्राइसेस है। एग्जैक्टली। आप कहते हैं गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, मैं कहता हूँ खंभों का हाल देखो क्या है। सिर्फ सड़कें अच्छी हैं वो भी शहरों में। कोई वाटर का हाल देखो, जो हमारे फ्लड्स आए हैं, हमारे पास वाटर मैनेजमेंट ही कोई नहीं है। पानी को मैनेज ही नहीं कर सकते हम। यू नो इट्स लेडी, मैं ना अभी अगेन अगर मेरे और लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी, लेकिन मेरे पास एक ये ना इंडस जो हमारा वो है, जो इसका इरिगेशन पूरा हुआ है, वो सुने इतना डिजास्टर्स डिजाइन है। वो हमने कॉलोनियल फॉलो किया है, और उसमें हमने लोकल मेथड, लोकल्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं अंदर किया, उनसे बात ही नहीं की। वो एक शिट शो बना हुआ है, और इसलिए हमारी फ्लडिंग भी हो रही है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल इतनी ज्यादा वो बना दी है विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंस, टू मच इंजीनियरिंग। अब देखो ना, जहां पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं नजर आती। एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें, ये ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने में इन्वेस्ट करें, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें, अस्पतालों स्कूलों को ठीक करने में इन्वेस्ट करें, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आती। ठीक है, सो यहाँ पे गवर्नेंस नील है, जीरो है। मगर गवर्नेंस आपको अगर नजर आती है तो आपको ये नजर आता है कि जी हाँ जी, रॉयल गोल्फ क्लब बड़ा अच्छा चल रहा है जी, आपका कंट्री क्लब बड़ा अच्छा चल रहा है। यू नो, वो भी गवर्नमेंट इदारे हैं ना। एचएल कॉलेज बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई अंडर फंडेड नहीं है, कोई जो एलीट को केटर करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो ठीक चलती है। डीएचए बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। मगर जो आवाम को केटर करती है इंस्टीट्यूशन, उनका बुरा हाल है भाई। प्रॉफिट किया था। हाँ सर जी, आपने भी देखा होगा, किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाके आप काम करवा के दिखाएं मुझे, कोर्ट्स में जाके काम करके दिखाएं इस गर्मी के अंदर। लोग यूं साथ चिपके होते हैं गर्मी के अंदर, स्वेटिंग फ्रॉम हेड टू टो, एंड दे स्टैंडिंग टुगेदर। एक पक्का होता है ऊपर से, वो भी अगर हो तो बड़ी गनीमत होती है। इतना, और 4-5 घंटे लाइनों में लोगों को गर्मी में खड़ा होना पड़ता है। तो आप कहते हैं गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, भाई वहां पे 3 लाइनें होती हैं मुश्किल से, 1000 बंदा वहां खड़ा होता है, वहां पे 3 काउंटर होते हैं मुश्किल से। पब्लिक इतनी ख्वार होती है वहां पे कि आप सोच ही नहीं सकते। आप जा ही नहीं सकते, आप काम ही नहीं कर सकते वहां पे। तो दैट इज कोर्ट्स को देखो, मिलियंस ऑफ केसेस पड़े हुए जनाब अली, वहां पे प्रोसेस ही नहीं हो रहे। बैकलॉग इतना ह्यूज है कि यू नो जिसकी हद कोई नहीं। आप कहते हैं गवर्नेंस बहुत बड़ी, कहाँ पे है गवर्नेंस? देयर इज नो गवर्नेंस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस तो है नहीं। मुझे हमेशा से बताया जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा एमी जो भी पार्टी आती है हुकूमत में, बहुत ज्यादा लोग रख लेती है अपनी हुकूमत में। आई नेवर गॉट व्हाट दैट मींस, what does it mean to have more people in the government? I was also, I might be wrong, जैसे मैंने नोट किया, लोकल बॉडी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे मुझे क्या पता है, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है, बट भूल गया हूँ कौन सा है, कि जैसे एक सर्टन ना आपको इलेक्शंस कराने होते हैं, जो जैसे एक तो आपके एमएनए वगैरह हो गए ना, फिर उससे भी नीचे एक होता है जो आपकी लोकल के अंदर आपको बताते हैं क्या क्या मसले हो रहे हैं, और वो टेक्निकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आपने उनको आना है, दे नीड टू बी पार्ट ऑफ इट। बट आई थिंक आज तक उसके नहीं हुए इलेक्शन और समथिंग। होते हैं इलेक्शन, लोकल बॉडीज होती हैं, हाँ होती हैं लोकल बॉडीज। उसमें सिर्फ जो इश्यू है जो रिजॉल्व करने की जरूरत है वो ये है कि उनको फाइनेंशियल कंट्रोल ज्यादा दिया जाए। ओके, हाँ, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल ज्यादा दिया जाए। मगर लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस है, एंड वी हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर पाकिस्तान, जहां भी। ओके, बट देयर इज, आई एम गेसिंग, नो एफिशिएंसी टू सॉल्व जो से मिल रहा है इंफॉर्मेशन और सारा कुछ। ये है कि जो बड़े प्रॉब्लम्स है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ नहीं है सेंस में कि लोग बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और इसमें नहीं हो रहा। अब ये देखो, ये ट्रांसमिशन लाइंस की एग्जांपल ले लो, दिस रिक्वायर्स सीरियस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये तो चलो आई गेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दिस इज डिफिकल्ट, दिस वी कांट डू। वी कैन,
That's what I'm trying to explain. We can do it अगर हम अपना पैसा जो है वो डिफेंस पे ना वेस्ट करें, IPPs पे ना वेस्ट करें, वेस्टफुल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शैंडलियर्स पे ना जाया करें, गवर्नमेंट के जी चीफ जो मिनिस्टर पहला आपने कहा ना वो सबसे ज्यादा है, डिफेंस भी है, IPPs भी हैं, और गवर्नमेंट की पर्क्स भी बहुत शामिल हैं, उनका प्रोटोकॉल भी बड़ा शामिल है। पुलिस को थोड़ा सा प्रोटोकॉल से कम करें आप और पुलिसिंग पे लगाएं, ये जो करने की जरूरत है। ज्यादातर पुलिस आपको पता है सारी VIP के पीछे भाग रही होती है। पुलिस क्या करे, वो भी फंसे हुए हैं वहां पे। You see what I'm saying? There is money in Pakistan. Let me tell you, there is money in money is not even the problem. किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मनी की अपनी वैल्यू नहीं होती। मनी इज जस्ट अ मींस वेयर बाय वी एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, जब मैं आपको पैसे देता हूं ना, इसका मतलब है मैंने आपसे को काम लिया, उस काम के बस मैंने आपको वो पैसे दिए। पैसा तो अपनी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके काम की वैल्यू है। ठीक है, सो मनी इज जस्ट अ मेथड टू एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, टू पे फॉर रिसोर्सेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज। समझ रहे हैं आप? वो तो वरना एक सिर्फ वो तो कार्ड के ऊपर, उसकी कार्ड के ऊपर भी पैसे एक्सचेंज हो जाते हैं ना। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी एक्सचेंज करते हैं, समझ रहे हैं? गोल्ड तो नहीं हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना, हम तो टोकन मनी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जिसको फिएट मनी कहा जाता है, राइट? सो मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। इट्स नॉट द केस कि वी डोंट हैव मनी। व्हाट वी मीन व्हेन वी से वी डोंट हैव मनी टू फिक्स दिस थिंग इज के रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग एलोकेटेड टू फिक्सिंग दैट प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि लेबर इज नॉट बीइंग हायर्ड टू फिक्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वेयर इज दैट लेबर गोइंग देन? या तो वो घर बैठा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, या फिर वो कोई और काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो आपके बगीचे को की सफाई में लगा हुआ है, वो आपको सर्व करने में लगा हुआ है, जो असल काम करने वाला है मुल्क के लिए वो नहीं कर रहा। यू सी, सो व्हेन वी से कि इदारे के पास पैसे नहीं है, व्हाट वी आर सेइंग है वो पैसे की नहीं वैल्यू होती। समझ रहे हैं आप? काम लोगों ने करना होता है, लेबर की वैल्यू होती है सब। तो पैसा सिर्फ लेबर को आगे पीछे एलोकेट करता है, समझ रहे हैं? तो जब हम कहते हैं इस इदारे के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब है कि सोसाइटी ने ये फैसला किया हुआ है कि ऑफ द टोटल लेबर अवेलेबल टू सोसाइटी, इसके ऊपर किसी को हमने लगाना ही नहीं काम पे। ये कौन फैसला करता है? हुकूमत करती है टू सम एक्सटेंट, बट दैट्स ओनली टू द एक्सटेंट कि उनके पास पैसे हैं। ठीक है, बाकी फैसले कौन करते हैं? प्राइवेट करते हैं। अब प्राइवेट लोग, हम आपके घर में जा रहे हैं ना, तो आप ये सड़क नहीं साफ करवाएंगे। क्यों नहीं साफ करवाएंगे? आप अपना घर अंदर से साफ कराएंगे, आप सड़क नहीं साफ करवाएंगे। प्राइवेट इकोनॉमी विल ऑलवेज प्रेफर कि वो अपनी प्राइवेट बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करे। हाँ, वो सोशल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं करेगी। इसीलिए आपको गवर्नमेंट चाहिए होती है कि कुछ चीजें जो है वो ग्रो नहीं कर सकती, कुछ सोसाइटीज ग्रो नहीं कर सकती जब तक आप उन सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते। उन सोशल बेनिफिट्स को एड्रेस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही कर सकती। दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। गवर्नमेंट सिर्फ इस्तेमाल होती है एलीट के लिए, गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं होती पब्लिक के बेनिफिट के लिए। Good. Thank you so much.